services skill, you know, to a large extent, and what our education system is, and therefore what is the how is it that in spite of higher education in a better position today, still we have lots of unemployment all around us. ये बहुत ही बड़ा मुद्दा आजकल का है, अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट हमारे इतने ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के बावजूद भी. And the third part will be that how our education, higher education platform can be utilized for this promotion of entrepreneurship. So coming to the first part, that is what is entrepreneurship and how entrepreneurs make a difference in the economy. Actually, you see, what is entrepreneurship? Entrepreneurship या उद्यमी लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि they bring together all the factors of production together. That is land, labor, capital, and raw material and technology and everything together. They bring those things together to produce some goods or services. कोई भी goods or services को produce करने के लिए वो इस पे काम करते हैं. But what kind of goods or services they produce? They first look around, and when they see some problem, they try to find a solution to this problem. So they are very innovative, they are very creative beings. कोई भी चीज उनको दिखती है चारों तरफ कि हाँ ये मसला है, इसको सॉल्व करना चाहिए, वो सॉल्व करते हैं by making some products or maybe providing some services. So we can say that it is a process of creating something very different with value by devoting necessary time and efforts. Obviously, lots of research and development is involved in it. Maybe there's lots of funding involved. We need money, we need infrastructure, we need the social acceptance of those products and services. And then in return for that, what reward they get? The reward is that the product and services are recognized in the economy, and then at the same time, it is, they earn money out of it. There is profit maximization, there is wealth maximization. Gradually, but wealth maximization always comes on the latter stage. After this, profit maximization is it is done to a large extent and on a very consistent way. So the entrepreneurship as defined, what is the event? Why is it that the government of India is now using all the, they are putting all their efforts in order to promote entrepreneurship? सिर्फ entrepreneurship पे focus है सारे तरफ. Because of maybe overlooming unemployment in the country, we need more people to provide jobs instead of more people seeking jobs. हमें job givers ज़्यादा चाहिए और job takers या job receivers कम चाहिए, seekers कम चाहिए country में. And maybe I think we have sufficient entrepreneurial brains. India में entrepreneurial brains, risk takers, innovative ideas की कमी नहीं है. Only I think we have lots of potential. इसको कहेंगे कि potential तो बहुत है, लेकिन उस potential को reality में कैसे transform किया जाए, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कमी है. So therefore now the government has realized, and देखिए वो भी एक situation है, जब इतनी unemployment चारों तरफ होती है तो हर आदमी को जॉब नहीं मिल सकती है. और जब जॉब, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से आप उल्टा जॉब देते हो. अगर हर आदमी पूरी कंट्री का जॉब ढूंढते ही रहेंगे तो जॉब देने वाला अगर कोई नहीं होगा तो जॉब फिर मिलेंगी कहाँ से? तो इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए इकोनॉमी में, कंट्री में, जो कि नौकरी का उत्पादन भी करें, वो नौकरी भी दे लोगों को. So we need more job givers. Just I'll explain it. If you go back into the history of India, जब बहुत पहले हम जाते हैं ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश जो है कैसे आए थे इंडिया के अंदर? They came as as a company, as a private company. We had British India Company, that is BIC. They gradually took over everything, and they sort of captured everything और उसमें जो पूरा रूल करने लगे. लेकिन पहले वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही एंटर हुए थे, just looking for all the raw materials, all the resources, maybe human resource also, a hard working labor class.
वो ढूंढ रहे थे और उनको वो मिल गया यहाँ पे आके, तो उनकी कंपनी बढ़ती चली गई, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, वो इतनी बड़ी हो गई कि वो रूलर्स में कन्वर्ट हो गए और पूरी हिंदुस्तान पे राज करते रहो, 100 साल तक रहे यहाँ पे, उसके बाद निकले। तो उस टाइम, लेकिन उस समय जो है उन्हीं ने, तब हमारे क्या, जो उन्हीं, उनको लेबर चाहिए थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उन्हीं ने हम लोगों को उसी तरह से डेवलप किया। ठीक है। तो इसमें ही मैं एक चीज का और जिक्र करूंगी, दैट इज दे आल्सो evolved the education in such a way so that they could produce clerks। और सिस्टम कुछ ऐसे जो अभी तक चल रहा है, काफी सालों तक चला और अभी तक चल रहा है विदाउट एनी मच इम्प्रूवमेंट, लेकिन अब हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। लेकिन इसके रिजल्ट भी दिखने में 4-5 साल लगेंगे, लेकिन अभी तक जो चल रहा था वो वही चीज था, जो सिंपली कॉपी पेस्टिंग, दैट इज आप रटो और उसके बाद इम्तिहान दे के आओ। बट यस, वी आर हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन, वेरी हार्ड वर्किंग। और एक कैलिबर भी है एंटरप्रेन्योरल डेवलप, पोटेंशियल हमारे अंदर है, हमारी जनता में। और इसीलिए जब उसको पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो डेवलप और ग्रो भी करता है। और इंडिया के बाहर जाके आप देखिए कि इंडियंस कितनी तरक्की करते, बिकॉज बेसिकली वी आर हार्ड कोर, हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन। सो एनीवेज, these are some of the reasons, and there are some of the benefits also। एंटरप्रेन्योर्स होने के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए भी गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कारोबार करें, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर्स कम अप विद वेरी गुड creative, innovative ideas which are new, and they bring a new solution to the existing problem. They create direct and indirect employment, obviously। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मीन जो छोटी मोटी दुकान या कारोबार या जो भी शुरू करते हैं उसमें वो काफी लोगों को नौकरी देते हैं। और उसके साथ साथ दे ऑल्सो दे प्रोवाइड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मीन्स बिकॉज दे आर बाइंग द रिसोर्सेज from other companies or other organization where they are putting orders। जब वहां पे भी और प्रोडक्शन होगा तो वहां पे भी जॉब्स क्रिएट होंगी। So this is, directly or indirectly, they're creating lots of employments। There is a talent explosion of professional and entrepreneurs, maybe for better return on investments, because they want to earn lots of, returns on whatever they have invested, and therefore they go for, they look for, hunt for talents। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स निकल के उभर के ऊपर आते हैं। They promote economic development and they also transform the rural into urban areas। हमने बहुत सारी सिटीज देखी है जो कि इंडस्ट्रियल सिटीज होते होते बहुत अर्बनाइजेशन वहां पे आ गया, बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया है। They also bring in lots of money। They promote, flow of funds flows into the Indian market। लेकिन इसमें funds को सिर्फ flow नहीं, Indian market के अंदर नहीं, बाहर का पैसा भी लेके आते। The more, innovative products we produce and we sell, we export, तो बाहर की करेंसी भी इंडिया में आती है। There is an increase in demand for related services, the new technology that cuts off production cost, and they also improve, on our international trade। हमारे import कम होते हैं, जब मेरे यहाँ प्रोडक्शन हर चीज का होगा, हर चीज बनेगी, तो हमें import करने की कम से कम जरूरत है। And obviously we are exporting more, and therefore there is an increase in GDP। So we can say that entrepreneurs, if we have more and more entrepreneurs, we bring in new investments, more flow of liquidity into the economy, more money, more competition, more outsourcing of services, and developing, talent pools, and they also, in a way, indirectly or directly, they lead to improved standard of living of people। लोगों की एक लिविंग स्टाइल इंप्रूव होता है, and they also lead to finally the creation of wealth in any economy, and any economy flourish if it has more and more people who are engaged in their businesses rather than depending upon the job opportunity। So this is the first part of my presentation, that is what an entrepreneurship is and how these entrepreneurs improve the quality of life of people, they improve the economy, and how they contribute into the economy, इनके benefits, advantages क्या होते हैं, ये हमने भी discuss किया। Now let us come and have a look at the position which is there in India, और especially उनके जो हमारा youth है उसकी एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बार बार हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जरा से एक पिक्चर हम देखते हैं।
So we see here that today India it stands with the biggest population in the world with around I think 65 सबसे ज्यादा तादाद है हमारी आबादी की जिसमें कि 65% जो population है that they are the dynamic population under the age of 35. And why do we call them the dynamic population? It is because youth is the most energetic and a productive section of any society. जो जवान बच्चे होते हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं जवान बच्चों को हम लेते हैं मे बी 25 to 35-40 years of age, here because it is a country's ability and potential for growth which are determined by the size and the strength of its youth population. This vast resource of young citizens actually they enter the workforce, which has created a demographic dividend. This demographic dividend means that economic growth that results from a population's age structure, because they are young, they are energetic, and they are full of new ideas, and they're full of that motivation to do something. So this, it calls for an economic trigger where a country has more hands available to work and less, than more in comparison to more mouths to feed. क्योंकि हमारी जो जनता जो डिपेंडेंट जनता है वो 35% है तो वो कम है जिसको फीड करना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन 65% लोग वो हैं जिनके दो हाथ मौजूद है काम करने के लिए. So because today's young generation, they are tomorrow's, they are innovators, they are creators, they are builders, they are leaders, etc. They become, they are the future of the country. So this is a very rosy picture, a very confident picture of India. But at the same time, the bleak picture is that the unemployment level, it was, when we checked the data, it was as high as 28.26% in 2021 in comparison to just 23% in 2018. So we saw that 5-6% का जो है इजाफा हुआ था पिछले 5-7 सालों में. Although India witnessed और इसके साथ लेकिन irony ये है कि at the same time India witnessed a very substantial expansion in the higher education sector. That is from 38.5 million students in 2029 as compared to 29.2 million students in 11-12. So from 29 to 38.5 in 10 years, that was a big, I should say, jump of higher education. That is the students studying. GER has improved by 7.9% in the higher secondary in these years. So we can see that in spite of higher, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अब निकल के आ रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, डिग्री ज़्यादा, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतनी नजर आ रही है? This is one of the biggest question. And FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, I just tried to bring out some data from them. One of their reports, it summarizes that state of the higher education is like that. Although India's higher education system, it contributes about 350,000 engineers and 2.5 million university graduates annually every year, and they are added to the workforce at any given time. But out of this, unfortunately, more than 5 million graduates, they remain unemployed. Now, this is such a sorry state, sorry picture that is presented from this data, whatever they have presented. We find that a large amount of, literature has analyzed that there is a mismatch between the education and jobs at the macro levels, as over-education, when the supply of educated worker seems to be more than its demand in the labor market, leading to maybe wage reduction or maybe compromise on the quality of job. क्योंकि इतने लोग पढ़ के और डिग्री हासिल करके आजकल निकल रहे हैं, और इतनी क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इतने बढ़ गए, प्राइवेट सेक्टर इतना बूस्टअप हो चुका है एजुकेशन इंडस्ट्री में कि इतने लोग, पढ़ाई इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन उस पढ़ने के बाद निकलने के बाद वो सप्लाई इतनी हो गई है लेकिन उतनी डिमांड नहीं है जॉब के लिए.
जब डिमांड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब सप्लाई ज्यादा है किसी भी चीज का, डिमांड कम होती है तो उसके रेट गिरते हैं, तो सैलरी वेज रिडक्शन होता है। ये हिंदुस्तान में हो रहा है। And therefore, on the basis of all these reports, we could conclude that there are three types of, skill mismatches, और जिसकी वजह से unemployment भी हो रहा है, frustration भी रहता है youth में. And these three are defined as type 1, which we say that there is an over-education. Over-education, that is at an individual level. Over-education can be defined as a form of skill gap, where overqualified people with tertiary education are hired for job or any activities. They are overqualified. उतनी qualification की उस post पे जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब किस बेसिस पे इनको फिल्टर करें और किस बेसिस पे सिलेक्शन करें, तो डिग्री या हायर एजुकेशन जो वो एक बेसिस बना दिया जाता है, ठीक है, because that is supposed to be one of the most transparent and easy screening device by the employers. Maybe for example, आप लोग ने शायद देखा हो अपने चारों तरफ ये, a postgraduate in economics is hired as a bus driver. We see so many PhD scholars, often we find them sitting on a roadside shop and selling as a retail. Maybe they are not the owner, they are an employee in that shop. ऑटो ड्राइवर है, PhD करा हुआ है उन्होंने. आपने देखा है ऐसे लोगों को कि नहीं देखा है? देखा है. एंड इज इट दिस इज द फैक्ट कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्रीज तो बहुत बांट रहा है, और वो डिग्री आसान हो गई है तो हर आदमी पढ़ता पढ़ता चला जा रहा है, लेकिन डिमांड नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं जॉब भी करनी है. वो भी एक रियलिटी की एक लिमिट होती है, उसके बाद घर चलाना है, पेट चलाना है, तो वो नौकरी, फिर ये लगता है कि कोई भी नौकरी मिल रही है पहले नौकरी करो. और आपको जी शाहिद साहब, फॉल्ट किसका है? ये सिस्टम का फॉल्ट है या स्टूडेंट के तरफ से कुछ फॉल्ट है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है. एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू. कैन यू एक्सप्लेन हाउ? क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है, अगर वो स्किल बेस्ड होता, जो आजकल हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं, पहले ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी, और एक भीड़ को पैदा कर रहे थे. Exactly. We are just producing quantity. We are not producing quality. Yeah. Quality means supported with the skills or something like that, isn't it? तो वो चीज नहीं हो रहा है ना हमारे क्या. तो ये तो हमारा स्किल मिसमैच हम चारों तरफ देख रहे हैं. सेकंड इज आवर sorry. Second type is skill match in technical education, और इसमें क्या हो रहा है? This is, specifically where people, they have received the higher education in technical field, such as maybe agriculture, engineering, technology, but they will end up in working, they end up working in jobs that do not require that training at all. क्योंकि उनको जो वो जिस तरह से सीखे हुए वो उस चीज की जरूरत नहीं है शायद, या उसमें 10 लोग ऑलरेडी मौजूद है तो वो पोस्ट अब उनके लिए नहीं बची है. फॉर एग्जाम्पल, मे बी वी कैन से एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, सपोज एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ फर्म, और मे बी एज अ मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री. तो ये जो स्किल गैप कब आता है? जब हमारी एजुकेशन हम पढ़ते चले गए, हमें पता नहीं उस चीज की जरूरत है कि नहीं है, और उसके बाद जब मार्केट में आए तो हमें पता चला रहे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, तो हमने ये गलत पढ़ाई करी. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ. आई रिमेम्बर माई यंगर ब्रदर, ही क्वालिफाइड फ्रॉम BHU, ही क्वालिफाइड IIT इन सिरेमिक्स. और सिरेमिक्स इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में बहुत लिमिटेड, मतलब लिमिटेड तो नहीं है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी. मैं आपको बता रही हूँ 15 साल पहले की बात. Job opportunities इतनी नहीं थी, and then he shifted himself into IT sector. कि excuse me, कि इसमें जो है जॉब अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसमें
इस तरह से अपने को एडजस्ट तो करना ही है, कमाना तो है ही है, तो वो उसमें स्किल मिसमैच की वजह से इधर आके सेट हो जाते थे। इसी तरह से थर्ड टाइप ऑफ इज क्वालिटी स्किल गैप। अगेन इट इज मे बी देयर आर सम कोर्सेस जिसके साथ कुछ टर्शरी एजुकेशन दे नीड सम स्किल विच रिमेन्स इनएडिक्वेट। अब फॉर एग्जाम्पल एक हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि कॉमर्स में बच्चे पढ़ते हैं, कॉमर्स में 15 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, सो मेनी सब्जेक्ट, 15 16 18 वैरायटी है हम लोगों की, ठीक है इसमें। Now what happens, suppose a boy he passed BCom and then he goes for and looks for a job and he gets an accountant job. अब अकाउंटेंट की जॉब तो मिल गई उसे, लेकिन अकाउंटेंसी में उसका स्पेशलाइजेशन नहीं था। मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए किया होता तो कर लेता आसानी से। लेकिन अब यहाँ पे तो क्या होता है कि कंपनी को फिर इसको अकाउंट्स की जो बेसिक्स है वो 2-3 महीने 4 महीने में सिखाने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट हियर मे बी जो आदमी है कहीं से भी हायर एजुकेशन कुछ भी लेके आया और उसके बाद एक स्पेसिफिक कस्टमाइज जॉब करने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है, विच नाउ आई थिंक nobody they are willing, no companies are willing to spend money on that. वो ये कहते हैं कि हम आपको रखें, उसके बाद 6 महीने आपको सिखाएं, 6 महीने की तनख्वाह आपको दे और उसके बाद फिर आप छोड़ के चले जाएं, या नहीं भी छोड़ के चले जाएं तो व्हाई शुड बी वेस्ट अवर रिसोर्सेज। हम आपको 6 महीने की तनख्वाह सिखाने के लिए क्यों दें, आप सीख के आइए तब हम आपको काम देंगे। और इसीलिए जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग, इस पे ज्यादा एम्फेसिस होता है, especially if the kids are applying for higher education in developed nations. तो वो सबसे पहले पूछते हैं आपने समर ट्रेनिंग कितनी बार करी है, इंटर्नशिप कितनी जगह की है, उसके सर्टिफिकेट्स ला के दीजिए। So this is also a very big flaw in our education system, that is leading to the skill gap, quality skill gap, because you are teaching them everything but there is no specific skills they could develop while they were learning the courses. और यूजुअली एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि जैसे ही कॉलेज खत्म किया जाए नौकरी लग जाए बच्चे की। एंड अनदर थिंग वी आल्सो फाउंड दैट एक बहुत और चलन चल रहा है हिंदुस्तान में, एंड दैट इज वन मेजर एनॉमली दैट इज सिंस 2003-18 के बीच में ज्यादा इसका वो था, अभी भी है, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. Jobless growth in spite of the economy growing, maybe at 7% or something. And what is jobless growth? Jobless growth होती है जो अपने आप काम ढूंढते रहते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रीलांस जर्नलिस्ट आप मिले होंगे, ठीक है, अब मैंने जो है ये चीज सीख ली, मैंने मास कॉम कर लिया, अब कहीं भी मीडिया में या कहीं भी इंडस्ट्री में जॉब मेरे लिए नहीं है तो मैं फिर फ्रीलांसर बन गया या फिर मैं यूट्यूबर बन गया। ये बहुत है आजकल ना, आपने अपने ही यूट्यूब पे अपनी चीजों को रिकॉर्डिंग शुरू करी और उसके बाद अगर यूट्यूब में 1 लाख लोग आपके उसको लाइक कर देंगे, या सॉरी व्यू कर लेंगे 1 लाख लोग, तो फिर उसके बाद आपके उसकी रेटिंग बढ़ेगी, आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ थिंग विच इज कॉल्ड द जॉबलेस ग्रोथ। तो हर आदमी दिखता तो है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं होता है उस तरह से। उसी तरह से एक और चीज देखी गई है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी। द प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द सेंस की रजिस्टर्ड और प्रॉपर तरह से जो लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो बहुत छोटा सेक्टर है। 70% कम से कम हमारी इकोनॉमी में बिजनेसमैन या लोग हैं जो कारोबार छोटे मोटे तरीके से कर रहे हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में, दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दे आर जस्ट एक घरेलू तरीके से काम को कर रहे हैं। मे बी इट इज फ्रीलांसिंग, मे बी इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मे बी दे आर इनटू एमएसएमईज, व्हाटएवर। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये सब चीजें तब ज्यादा इतनी अच्छे क्वांटिटी में मौजूद है, ये जॉबलेस ग्रोथ और आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर ये मिस मैचेस जो हमने डिस्कस करे, in spite that variety of initiatives and schemes for skill development, for example maybe skill India mission है, national skill development mission है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना etc. ये सारे जो है, ये सारी योजनाओं आने के बाद भी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम नहीं हो रहा है, कहीं से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है।
So I think what अभी आपने जैसे कहा नदीम साहब, इसी तरह से मैं कहूँगी प्रॉब्लम बहुत ही ह्यूज है in a big country like India, and therefore it cannot be overlooked. First point, it should not be overlooked. और यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो होता है अपनी ही प्राइमरी और हायर एजुकेशन सिस्टम पे. That is, our education system is so theoretical, so conceptual. It's not practical. It is the quality and pedagogy of our primary and higher education. किस तरह से हमारे क्या पेपर को, सब्जेक्ट को, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है. तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती चली जा रही है. And even there is gap of vocational training and maybe training infrastructure is missing. एक वो जो होता है ना, जैसे एक अंग्रेजों ने, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अब क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम इट इज टू मच फोकस्ड ऑन ग्रेड्स. एक मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है. तो उसमें होता क्या है कि ये जो बच्चे हैं वो टोटल फोकस उनको रटना और जाके इम्तिहान में देना. There is lack of practical, inputs and practical initiatives for them. And therefore, we find that general education is too focused on grades and careers instead of being, oriented towards innovation and entrepreneurship. So, do you all agree with this, with all these problems that is coming up or that we are witnessing in the economy? Ma'am, Yes, please. ma'am, because you were talking about practicality of the subject, we focus more on theory. And when we think about entrepreneurship, we associate it with departments like commerce or maybe departments where innovation and invention takes place. But coming from a background of geography, and there's very less scope, there's some scope of GIS, some scope of maybe statistical techniques. But apart from that, we cannot do much in terms of skill development. In that case, won't these subjects become redundant? No, 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 no. I'm not saying, see, I'm not saying that entrepreneurship is the only solution and it is the only that economics, commerce, and management department are going to thrive. No, I think an equal balance of everything is required. And I'm coming to that. I'm coming to that. And I'll discuss that how it's not only entrepreneurship, because I cannot say that we don't need doctors, we don't need engineers, we don't need maybe, civil servants, we need them all. But then how can everybody is in that, rat race of becoming a civil servant or maybe doctors and engineers? और एक जमाना था, अगर मुझे याद हो बचपन में, आप हम लोग की जनरेशन में, कि 2-3 ऑप्शंस के अलावा कोई और सा करियर ऑप्शन दिए ही नहीं जाता था. And entrepreneurship was the last one, isn't it? Yes, ma'am. And when I think about entrepreneurship, like can't relate with it. So maybe I'll maybe by the end of this session I'll help you out. Just give me 1 minute. I will be taking a break for a minute. I'm so sorry for this. Just allow me a break for 1 minute. हेलो मैम, ऑडियो आपका म्यूट हो गया है. I'm so sorry. Just something urgent came in from the office. I have to attend. I'll be just back in half a minute. ओके मैम, ओके, कोई बात.
I'm so sorry for the disturbance. Ma'am, I'm going to come back to what you asked because I think that is another big dilemma. But no, it's not a dilemma. I'm just suggesting that entrepreneurship can be an option, additional option to other career options if you choose. So everything, everything is important in a very, very balanced way, and therefore that is required in the economy. So after understanding the maybe the requirement of our this education system, the failures in our education system that is failing to produce entrepreneurs to a good number. We now come to back to again that the government is finding an alternative solution, that is entrepreneurship as an alternative solution, and therefore this part I will be just discussing that how the government is helping people or maybe promoting entrepreneurship at different platforms. So they have taken lots of initiatives. That is, lots of action plans have been already taken, which mainly focuses on three areas, that is simplification and handholding, funding support and incentives, and the third is industrial academia partnership and incubation. This is what we are going to focus more upon. So this is what our basic structure is, how the government is helping. First, it is handholding. Handholding is simply, when the entrepreneurs, they want to develop themselves, they need to have some basic, I should say, preliminary learning and training, because they are not aware about the legal requirement for becoming an entrepreneur or starting their business. They do not have knowledge about the IPR, that is intellectual property rights. That is, if they have, then what should be their trademark? How can they protect themselves from being cheated in the market, from their product being stolen by others, or product idea being stolen? Then what is the exit process, etc. So the government has provided these things on their government portals. They are available on internet. So whoever wants to check in, they can always go into detail about this, and they can check in that how they can take advantage and they can help themselves develop in these domains. Then there is funding incentives. There are so many funding bodies, which are institutions which have been created and promoted by the government of India. For example, SIDBI can be a very good example, where they are providing so many schemes, और उस स्कीम्स में इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट या मिनिमम इंटरेस्ट लोन भी दिया जाता है लोगों को, जिससे कि वो अपना कारोबार कर ले. देयर आर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स. दे आर so many. Canara Bank, for example, it is established as the I should say as a lead banker. Yes, as a lead banker, जो कि MSME सेक्टर को फंडिंग अवेल कराता है और उनको ट्रेनिंग भी देता है उस कारोबार की पर्टिकुलरली जो भी उसमें ट्रेनिंग उसमें सिखाया जाता है. एंड देन द टैक्स फॉर्मेलिटीज आर देयर बिकॉज यू हैव टू पे GST, you have to pay income tax, etc, etc. Finally, the third pillar of this initiative is the incubation center. That is, or I should say, the industry and academia and government partnership. Actually, here what happens that this incubation center, what is the meaning of incubator? Incubators क्या होते हैं? Hospitals में हमने देखा है incubators होते हैं जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, नए बच्चे, वो कमजोर होते हैं. उन बच्चों को जब तक इतना मजबूत वो ना हो जाए कि अपने आप वो ग्रो करें या अपने आप को आराम से वो बढ़ना शुरू हो, तब तक कि उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है. तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाए, या फिर इनोवेशन एंड इन डेवलपमेंट इन्वेंशन सेंटर्स बनाए जाए, जहाँ पे उन बच्चों को प्रमोट किया जाए या सपोर्ट किया जाए जिनके पास बिजनेस आइडियाज है, who have potential to do a business. They have for example engineering के बच्चों के पास प्रोडक्ट आइडिया है और वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या वो कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लाना है, तो वो सपोर्ट सिस्टम उनको इंक्यूबेशन सेंटर या इनोवेशन सेंटर से दिया जाता है.
That is, they are given some maybe replica models of those machineries to work upon. They are taught banking, they are taught funding, they are taught marketing, packaging, selling, everything. तो वो ये इसको बोलते हैं academia and industry partnership. The government is they are providing funds also to the universities कि आप इसमें, और उन बच्चों को फिर डायरेक्ट फंडिंग करते हैं, वो लेके चले जाते हो फिर उनको फंडिंग करते हैं. They are also helping universities and colleges to they are giving them grants to hold competitions, to hold workshops, training programs, etc. in order to develop the students, and so many events can be organized. So this is how the government is working in order to promote. And government has, I think now it has been realized that yes, प्रॉब्लम है, मसला है, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए. अगर ये चेंज नहीं लाया जाएगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद जाके मीन्स ये अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी वजह से सारी चीजें बैठ जाएंगी, फ्लॉप हो जाएंगी. So they are working in this direction, and therefore they have come out that maybe to consider that whether entrepreneurship can be developed and evolved in the people. And what I feel that yes, बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ और मैंने देखा कि दे हैव अ प्रोडक्ट आइडिया, उनके पास प्रोडक्ट आइडिया बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट को वो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद मार्केट तक नहीं ला पाते, उनको बेचना नहीं आता, और प्रोडक्ट भले ही उनका बहुत यूनिक हो. For example, maybe there are so many ladies who are cooking, they are expert cooks at home, and they know कि अगर इसको हम बेचेंगे तो बहुत तेजी से बिकेगा, लेकिन उनको बेचना नहीं आता है, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, उनको फंडिंग नहीं पता कैसे. इसी तरह से इंजीनियरिंग के बच्चे, उन्हीं ने इंजीनियरिंग पढ़ी, वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा इवॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं ने कॉमर्स या मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है, तो वो वाला पार्टी. तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ चीज नहीं है, इट इज सिंपली अ सॉफ्ट स्किल, या वो आर्ट या हुनर है जो कि सीखा जा सकता है, और अगर उसको बचपन से इवॉल्व किया जाए तो शायद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है. सो जो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है. सो वी आर कमिंग टू दैट व्हाट शुड बी, इट्स नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन अपने एजुकेशन या इसमें इन सबको इम्प्रूव करने कैसे किया जा सकता है. सो वी फाइंड दैट that maybe I can say that while investment in human capital it is very important, because अगर economic growth हमें चाहिए, अगर हमें full employment चाहिए, realize करना है, sustain development चाहिए, तो हमें सबसे पहले human capital में invest करना पड़ेगा. And कैसे invest करना पड़ेगा? That will be through some changes to be brought in the higher education, technical education and vocational skills. Because these are the things, they improve the competitiveness maybe of a person to come on the field and perform. क्योंकि कोई चीज अगर हम प्रैक्टिकल बचपन से सिखाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, और उसके बाद उसकी तरह से बच्चे जो अपने को इवॉल्व करेंगे, और आगे जब वो असलियत में आते हैं, लाइफ में वो चीज फेस करते हैं, तो दे कैन परफॉर्म बेटर. And therefore, we can say that these kind of things can improve the competitiveness, and they can contribute to social inclusion, productivity, maybe decent employment for all, and also ultimately, obviously, this productive poverty reduction. तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो स्किल डेफिशिएंट है इंडिया में, it requires a policy and institutional framework. इसका पूरा चेंज चाहिए, policy and institutional framework पे पूरा बदलाव आना है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया है, but it is more required more strongly, because ये वाला जो चेंज आना है, वो this will depend upon the partnership between the government, industry, providers of educational and training services and the civil society. इसमें सबसे ज्यादा important रोल है, सबसे पहले जो रोल है वो है सिविल सोसाइटी का. After that, providers of educational training services, but I think government has to be more important there, क्योंकि government के इशारे के बगैर, उनकी policies के बगैर ये educational institution अपना freedom इनके पास इतना नहीं है. They have to perform within some certain framework, एक framework में उनको जो perform करना पड़ता है. But the civil society, it is the most important part, because the civil society, it is the parents,
It is the people who have to decide. It is these people who have to decide. We have to decide for our kids. We are the people, who always push our children towards competition, even if they do not have the caliber to do that. So we have to, change ourselves from, I think, from the very beginning. कि नहीं, बच्चे को पूरा खुला चॉइस देना चाहिए कि नहीं, ठीक है, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, मेडिसिन भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो. बट व्हाट वी हैव इन अवर माइंड कि नहीं, बिजनेस करने में बहुत रिस्क है, कोई जरूरी नहीं है कि कामयाबी मिले, और इसलिए जो है सेफ साइड है कि सर्विस, क्योंकि वहां तो नौकरी मिलेगी और तनख्वाह भी मिलेगी, प्रॉफिट कमाए ना कमाए ये बहुत बड़ा रिस्क है. तो सिविल सोसाइटी का अगर माइंडसेट चेंज होता है तो फिर वो चेंज आएगा कि जब हम बच्चों को अपने फ्रीडम देंगे, नहीं बेटा तुम लोग इधर भी जा सकते हो, ये भी एक सेकेंड ऑप्शन है. So no doubt the steps have already been taken by the government of India through new education policy, but और सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, अभी मैंने आपको बताई इतनी योजनाएं हैं सरकार की. वो योजनाएं अगर अर्नेस्टली इम्प्लीमेंट हो जाए, अर्नेस्टली एग्जीक्यूट हो जाए, आई थिंक दोज पॉलिसीज को सक्सेस काफी दिखेगी, अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. बट देयर इज नो ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन, तो वो जमीन तक आते आते उनका असर खत्म हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है, isn't it? उसके बाद मुझे लगता है एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सोसाइटी या गवर्नमेंट के पार्ट पे बात हो गई. हायर एजुकेशन में जो सबसे बड़ा चेंज आना है, जो अभी हम लोग आप भी लोग भी डिस्कस कर रहे थे, कि it is very important that we blend the theoretical and the conceptual knowledge with the practical learning. आप देखिए, मुझे 2-3 इंस्टीट्यूशन का मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेंड है प्रैक्टिकल लर्निंग एंड द थ्योरेटिकल लर्निंग. फॉर एग्जांपल द टिस इन बॉम्बे, टाटा इंस्टीट्यूट एंड सोशल साइंसेस का जो वो है, और उसके बाद आपका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. They are private universities, but they are very strongly, they are teaching the social science subjects in a very, very practical way. They are always leaving the students on the field. उनके हर सेमेस्टर में कम से कम 25 दिन या 1 महीने का फील्ड सर्वे या फील्ड स्टे जरूर होता है, कोई भी सब्जेक्ट में. If the person is into, suppose the paper is maybe policy making or maybe development, masters in development किसी बच्चे ने करा, हर सेमेस्टर में उसको बिल्कुल जो अंडर प्रिविलेज्ड या फिर जो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में सोसाइटी कम्युनिटी रहती थी, वहां पे वो भेज देते हैं, वहां पे 1 महीना रह के आइए, उनके साथ रहिए, और आप देखिए कि यहाँ पे पॉलिसी इंटरवेंशन या गवर्नमेंट को आप क्या राय दे सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है. देखिए, जब तक कि स्टूडेंट रूट लेवल पे चीजों को देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो उसका माइंड उस क्रिएटिविटी की तरफ जा ही नहीं पाएगा. Similarly, I have seen the universities in some of the developed countries. For example, Switzerland में ECOL, Lausanne में एक यूनिवर्सिटी है, ECOL University. In this university, one of the courses उन्होंने कई साल पहले जो एक वो लिया था, एक सिंपली एक ट्रायल किया था कि जो फाइनल सेमेस्टर इंजीनियरिंग में होता है, उसमें उन्होंने जो भी बच्चों ने प्रोडक्ट पे लर्निंग करी है या डेवलप किया है, उस पे या तो उनको प्रोजेक्ट बनाना है या फिर वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं. दे गेव देम एज एन ऑप्शन. तो जिन बच्चों ने ऑप्ट किया कि नहीं हम स्टार्टअप करेंगे या कारोबार अपना करेंगे, इस प्रोडक्ट को बेचेंगे मार्केट पे, they provided all the eco environment to develop a base for business. For example, they said that okay, हम आपको बैंकर से मिलवाते हैं, हम आपको फंडर्स से मिलवाते हैं, हम आपको ले चलते हैं, मार्केटिंग का सिखवाते हैं. They invited the experts, marketing, packaging, ये सब चीजें, ठीक है. And what happened at the end of that semester, maybe 6 months or 8 months, that a student could initiate a business. और उसके बाद उसके जो बिजनेस का प्रोजेक्ट जो होता है, इसी तरह से मॉस्को में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, रशिया में भी इस तरह से होता है. लास्ट सेमेस्टर में वो ऑप्शन देते हैं, यू कैन गो फॉर योर बिजनेस, एंड उस बिजनेस जो भी प्रपोजल जो भी बिजनेस वो स्टार्ट कर चुके होते हैं, उसके बेसिस पे उनको उनका कारोबार शुरू हो जाता है. उनको मार्क्स मिलते हैं, क्रेडिट मिलते हैं, तो देयरफॉर दे गेट द रिजल्ट्स इन दैट. ओके, बट एट दैट टाइम एट द सेम टाइम उनका कारोबार भी शुरू हो चुका होता है.
और जब वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगते हैं तो दे स्टार्ट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, वो और लोगों को भी अपने साथ में भी पार्टनरशिप या फिर किसी ना किसी चीज में वो इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को इस तरह से. So this way we find that so many universities around the world, we find that they are moving. India में भी बहुत सारी universities, but startup वाला option अभी नहीं है. I have not come across at least, but yes, practical field work ये होता है. और जब internship जहाँ पे करते हैं तो उनके आधे से ज्यादा मार्क्स जो है वो जहाँ पे internship कर रहा है बच्चा उन लोगों को देना होता है कि इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप मार्क्स भेजिए हमें, इनका प्रेजेंटेशन देखिए, इनका जो आउटपुट देखिए, रिजल्ट क्या रहा है, इन्होंने जो काम किया वो परफॉर्मेंस कैसा है. तो आई थिंक एवरी कोर्सेज, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसको पूरा प्रैक्टिकल करना चाहिए. और या तो हर सेमेस्टर में भी 1 महीना या 20 दिन का इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए जहाँ बच्चे को जाके फील्ड में रहना पड़े और उस रूट लेवल पे समस्याओं को समझे और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकाले. बिकॉज entrepreneurship is not only starting a business. Entrepreneurship is finding a solution, a creative, innovative solution to, existing problem. So आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, किसी भी फील्ड के बच्चा जो है वो कर सकता है वो चीज. एक बार उसको लगेगा कि हाँ नहीं, फिर मुझे इसी डायरेक्शन में काम. So that is very important. After that, I think स्कूल लेवल पे अगर हम जाते हैं तो स्कूल लेवल से ही हम क्यों नहीं एक प्रैक्टिकल इनसाइट, एक रटने वाले माहौल को बदल के एक क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडिया की तरफ बच्चों का ज़हन भी लेके जाए. एंड लेट अस IB बोर्ड्स जितने हैं उन्होंने तो काफी अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स जो एक पेपर यूज कर दिया है, आई थिंक फ्रॉम क्लास 3rd ऑनवर्ड्स. बिकॉज जो IB बोर्ड के बच्चे हैं वो मैंने देखा है कि वो लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कुछ ना कुछ. दे आर इनटू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. For example, one of my niece, she is studying in Bangalore, one of the IB board. उसको जो एक प्रोजेक्ट दिया, उनके क्लास में प्रोजेक्ट दिया गया that make some virtual product and that you have to sell that product in your, there will be an activity. तो फील्ड में उनके स्टॉल्स बनवाए गए और वहाँ पे वो वर्चुअल प्रोडक्ट्स को या फिर गेम्स का की कोई भी गेम्स and how you will earn money out of this. So they are learning because they are giving them the taste of, taking risk, learning by practically doing it. So this is all what entrepreneurship is about. और इनके साथ साथ गवर्नमेंट जो डेवलपिंग कंट्री है, हमें R&D को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है. We have to create, easy doing business in real sense, ease of doing business in real sense, which is still very tough. क्योंकि यंग बच्चे मैंने देखा है जब वो शुरू करते तो उनको पहले ही से बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स हैं, घर के लोग पहले ही से डराए होते हैं ज्यादातर जगह पे. और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद उनको जब वो एक्चुअली फिर भी रिस्क लेते हैं तो वो देखते हैं कि पेपर फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशन, ये सब इतना काफी गवर्नमेंट ने मिनिमाइज किया. बट आई थिंक इट इज फर्दर नीडेड दैट वी नीड टू मिनिमाइज देम एंड इट इज टू बी जैसे परमानेंट स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम है या कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे रिलैक्सेशन है, ये सब चीजों की अब जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट को. लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो मेरा फोकस यहाँ पे है वो ये है कि स्कूल्स और हायर एजुकेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है वो लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उसके बिना इट इज नॉट पॉसिबल. And therefore this is, then maybe experiential learning means learning while practicing. That is, suppose we are teaching income tax. Now when we are teaching income tax, the student should be given a project कि आप जाइए, आप रिटर्न फाइल करके आइए. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर सिखा रहे हैं तो उनको पूरा पेपर वर्क कराने को भेजना चाहिए. बैंकिंग है तो बैंकिंग. एंड इन डेवलप्ड नेशन वन थिंग मोर आई विटनेस्ड, US में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं. और जितने भी म्यूजियम में आप जाएंगे आप देखेंगे उसमें कम से कम 2 या 3 स्कूल की बसेस खड़ी हुई हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, उनको म्यूजियम दिखाया जाता है. And this is how they are taught the chapters most of the time. Whether it is a science museum, whether it is an historical museum, whether it is a space science museum, or मैंने वहाँ पे art and craft and painting, just giving a child an exposure so that he should know कि हाँ कितने options उसके लिए available हैं choose करने से पहले. Nobody is forced to do that, everybody is given option. और उसके बाद जैसे हम अगर
एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जो है स्टूडेंट्स को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात कराना चाहिए. वी मस्ट मे बी एक सेशन करा दिया, लेक्चर करा दिया, एक सेमिनार करा दिया, जहाँ पे आप अपने शहर के 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लाए. बिकॉज समटाइम स्टूडेंट्स का जहन जो होता है वो बहुत कच्चा होता है, बहुत जल्दी वो इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं. सो इफ दे गेट मे बी, कितने लोगों को वो क्लिक कर जाए एंड दे गेट इंस्पायर्ड. और इंडस्ट्री विजिट होनी चाहिए. There should be emphasis on building the network, that you go and visit and then you ask the question, you prepare your project this way. और उसके बाद इस तरह से चीजें ना पूरा जो है बहुत अच्छे से आपको एक क्लाउड आप एक डेवलप कर सकते हैं, जो कि जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सकता है. So this is all what I had to say about this thing, that is entrepreneurship development and how it can be promoted to different areas and different subjects. एक मैं आपको शेयर करूंगी एक प्रोग्राम जो मैं करा रही हूँ अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. It is one of the program which I signed an MOU with the University of Houston in US, and now it has been signed for 5 years. तो ये हर 6 महीने में ये वर्कशॉप होती है. ये 3 महीने की वर्कशॉप होती है. That is with all this is called SURE. The full form of this program is the Sustainable Urbanization through entrepreneurship. तो इसमें ये होता है कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन दिया जाता है वो नॉन कॉमर्स के बच्चों को दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, जो आगे चल के अपना कारोबार करना चाहते हैं. देयर आर पीपल फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड ऑल्सो, और उनको हम 3 महीने तक के हर संडे सेशन होता है, रोज नहीं होता है. तो वी हैव जस्ट 12 सेशन, जिसमें जो मोटी मोटी बातें होती हैं बिजनेस करने की वो सिखाई जाती हैं. एंड वो सिखाता कौन है? जो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री वो आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट आके अकाउंटेंसी की नॉलेज देते हैं. बैंक, कैनरा बैंक की टीम आएगी, वो बैंकिंग के बारे में बताएगी. फंडर्स की टीम आएगी, वो फंडिंग के बारे में बताएगी. तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के अलावा भी होते हैं. तो जो लोग अपना कारोबार फॉरेन शुरू करना चाहते हैं, पहले तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो सिखाया जाता है. एजुकेशन मेन मुद्दा है इसका. लेकिन उसके बाद जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको हम लोग मदद करते हैं कारोबार शुरू करने की. उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा दिया, जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा दिया. उनको बैंक में चाहिए लोन तो बैंक वालों से उनको मिलवा दिया. वी हेल्प देम टू डेवलप द प्रोजेक्ट प्रपोजल. क्योंकि ये वो चाहे कपड़ा बेच रहे हो, चाहे वो दवा बेच रहे हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, लेकिन ये बेसिक नॉलेज कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को कैसे ले जाके बेचना है, या फिर जीएसटी कैसे पे करनी होगी, या अकाउंट्स की बुक कैसे, ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेसिक स्किल है जो हमें डेवलप कराया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू. तो इसमें देखिए एक पार्टिसिपेंट जैसे हमारे क्या था, शी वाज एन आर्टिस्ट. तो उसको अपनी कोचिंग खोलनी थी, या उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने आर्ट ड्राइंग करती हूँ, पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इससे मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ सिर्फ आर्ट और पेंटिंग से. तो देन शी केम टू माय प्रोग्राम एंड शी जॉइंड एंड शी लर्न. और 3 महीने के एंड में हमने उसका एक कोचिंग सेंटर खुलवा दिया. अब वो बहुत अच्छे से चला रही है, जिसमें वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से सिखाती है. और उससे अच्छी बात है कि वी इनवाइटेड पीपल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, उन्हीं ने इसको रजिस्टर करा. और यूपी में कहीं भी एग्जीबिशंस लगती है वहां पे उसको भेजा जाता है. उसको अगर कोई लोन या कोई हेल्प चाहिए होती है, वो पैसा उसको दिया जाता है उधार. और जब वो एग्जीबिशन में पैसा कमा लेती है, वो पैसा फिर डीआईसी को वापस कर देती है. And there is a very big diverse 80 पार्टिसिपेंट, 100 पार्टिसिपेंट, कोई सा कारोबार कर रहा है, उनको सिखाया जा सकता है. तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम जस्ट सेइंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एवरीथिंग, but entrepreneurship can be an option apart from engineering, medicine, or always becoming an engineer, a doctor, or anybody professional बनने के अलावा ये भी एक ऑप्शन है जिसमें एक अच्छा करियर है, एक अच्छा, और इसको इस तरह से डेवलप भी कराया जा सकता है. और देखिए ना आप, इसीलिए आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें भी एक स्किल डेवलपमेंट पे सेशंस कंपल्सरी करे गए हैं.
so that you all also participants also get an exposure that if it is required at our university level, how can we do it? Okay. So that is all what I have to say about entrepreneurship at a higher level, or how we can go for it. Now, anything if you want to ask or you want to discuss. Any queries or any doubts? Participants, if you have any question, you can ask regarding the entrepreneurship. Ma'am is with us now. Hello. Ma'am, मैम ने I जो have a question. Yes, Abhishek Sharma, I think. Yes. One by one, सवाल one by one करें आप लोग. Ma'am, if the parents are the actual hindrance towards the children growth in the entrepreneurship, why don't we take those students which belong to a business family or small business family like kirana shop or small businesses like that? We trained those children to become entrepreneur, and they have actually exposure to marketing as well as they have risk-taking capability more than a service a person parents which belong to service class. I agree with you, Abhishek ji. That it's देखिए ज्यादातर ये मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जगह ये देखा गया when I go and I do give them opportunity, जो इस तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर ये देखा जाता है पेरेंट जो है जैसे खुद कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने खुद इतने फ्लक्चुएशंस देखे हैं, अप एंड डाउन देखे हैं, तो वो ये सोचते हैं, उनको हमेशा जैसे लगता है, हमेशा कहते हैं ना दूसरी साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर. सो उनको ये लगता है कि ये जो है सेफ है सर्विस करना. तो मैंने देखा, आप देखिए अलीगढ़ में ताला इंडस्ट्री है, ठीक है, आपके मुरादाबाद में ब्रास और ये सब तांबे का कारोबार बहुत अच्छा है. इसी तरह से अलग अलग, लेकिन वो अपने बच्चों को ही इन बिजनेस में बहुत कम लोग ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है बहुत रिस्क टेकिंग है, बहुत ज्यादा वो है, तो बच्चों को हटाओ, उनको सेफ ले. तो पहले वही मैंने बात अपनी की थी कि पहले वो माइंडसेट एक चेंज करना पड़ेगा. मैं बता रही हूँ, आई बिलोंग टू कानपुर and my father was a businessman and he had a very good business of leather. ठीक है, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री उनका लेदर का था and his product was sold throughout the country. But I have two younger brothers, we are four, और हम चारों में से किसी ने उनके बिजनेस को नहीं ऑप्ट किया, बिकॉज ही शायद बचपन से उन्हीं ने काउंसलिंग ये करी कि नहीं सर्विस ज्यादा सेफ है, वो ज्यादा वो है, आपको छुट्टियां भी मिलती हैं और सैलरी एक प्रॉपर मिल जाती. बोथ माय ब्रदर्स दे आर इन द सर्विस सेक्टर. लेकिन उसमें बाद में ये रियलाइज हुआ व्हेन माय फादर ग्रू ओल्ड, देन द होल एम्पायर व्हिच ही हैड बिल्ट थ्रू हिज लाइफ, और इतना बड़ा कारोबार, दैट हैड टू बी क्लोज डाउन विदाउट एनी रीजंस बिकॉज देयर वाज नोबडी एज अ सक्सेसर, क्योंकि वो एक दौर था शायद. तो अब जो है ये चेंज आया है कि जब आपका अपना इतना अच्छा एम्पायर है, आपने इतने साल उसमें लगाए हैं, इतना पैसा लगाया है, खून पसीना भी लगता है ऑब्वियसली, बिकॉज फॉर एन एंटरप्रेन्योर इट इज नॉट अ 5 days सर्विस, इट्स नॉट अ 6 days जॉब, इट इज 24/7. उसको टाइम देना है क्योंकि वो उसकी चीज है. तो वो माइंडसेट चेंज होना चाहिए. मुझको बिकॉज कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, आई बिलोंग टू दैट प्लेस एंड आई हैव सीन, मेरी जनरेशन में बहुत सारे बच्चे, उनको अच्छी स्कूलिंग दिला के उनको अच्छी जॉब्स में शिफ्ट करा दिया गया, और बहुत सारे लोगों ने जब बच्चे चले गए, निकल गए, उनको और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके बच्चे उनके साथ रह के काम कर रहे हैं, दे आर तो. और स्पेशली जब छोटे स्केल पे जो एमएसएमई छोटे सेक्टर में, तो वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. Because see, I think entrepreneurship, it's not a 200 or 100 meter race. It's a marathon. It's a 800 meter या मैराथन है पूरा, जिसमें एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं और एक एनर्जी चाहिए होती है, जो आप धीरे धीरे करके बिल्डअप करते हैं अपने को सस्टेन करने के लिए मार्केट में. एक गुडविल पता है रातों रात नहीं बिल्ड होती है, टेक्स इयर्स. तो वो आप बिल्ड कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप अपने बच्चे को नहीं उसमें लाना चाह रहे.
आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई ये रिस्क ना ले, ये थोड़ा सेफ साइड पे चला जाए और ये उस तरह से करे। तो ये माइंडसेट चेंज होना, हर आदमी सर्विस की तरफ जाएगा तो सर्विस देगा कौन? तो we have to work on balancing things। ये चीज है। और छोटे लोग तो अभिषेक जी, छोटे जो दुकानें और वो होते हैं ना, वो लोग तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो पढ़ लिख जाए और अच्छी नौकरी में चला जाए, यहाँ क्या घिस घिस करता रहेगा, 24/7 जो है काम करना पड़ेगा। तो ये इशू तो है। तो इसीलिए एक माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। डू यू एग्री? Ma'am, Yes, ma'am. हाँ, yes, मैम जी। Ma'am, so like still going on with the train of thought that I had earlier, like how can we contribute to like, making this situation better? Because we are part of the problem. We are in the education system and we are part of the problem. Personally for me, Yes, please continue. yes, ma'am. Personally, for me, entrepreneurship is something definitely doesn't come with my subject background, but something of my interest. And there was a point of time wherein I was very enthusiastic about it. I did actually organize a 5-day workshop, also entrepreneurship sensitization, along with which was funded from National Institute of Technology, Meghalaya, part of aspirational district program in Sikkim. Sikkim has a very small market, and the products here also so from my experience of conducting that workshop, whichever things that you told about, it was on a very small scale. We did invite local entrepreneurs, people from MSc bank, people like of experts, they came in, but it's very difficult to maintain the momentum. First of all, we do not have the funding to continue with this kind of workshops wherein we can bring students and give them training. Secondly, I did not see any results. I did invite students from different subjects and from other skill developmental colleges also, but some local stakeholders from women groups as well. But eventually, after the workshop, there was no follow up. Even I could not do anything because I do not come from this background. So I felt very limited. And how can I do like contribute more to this, like to जैसे better मैंने the आपको situation? बताया, देखिए मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अ शॉर्ट रन प्रोग्राम। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, इट्स अ मैराथन। पहला पॉइंट ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी ये वर्कशॉप कराती हूँ, जो श्योर प्रोग्राम कराती हूँ, इट इज अ सिमिलर प्रोग्राम। और इसमें मैंने देखा कि काफी लोग बहुत ही ज्यादा आई शुड से रेस्टलेस होते हैं कि वो फौरन रिजल्ट देखना चाहते हैं। आपने वर्कशॉप कराई, वर्कशॉप सपोज 3 महीने की मेरी वर्कशॉप है, 3 महीने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई फौरन कारोबार खड़ा कर लेगा? नहीं पॉसिबल है। द फर्स्ट, हमने सिर्फ पहला स्टेप फॉलो करा है, वो करा है, उनको एजुकेट करा है। और मैं इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन में जो लोग ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं उनको भी पार्टिसिपेट मतलब अलाउ करती हूँ, क्योंकि वो कई लोग होते हैं जो स्केल अप करना चाहते हैं और ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप करना चाहते हैं। तो उनको अगर फंडिंग फैसिलिटी है, ये हम लोग कोशिश करते हैं दिलवाने की। लेकिन आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्कशॉप खत्म हुई और वो फौरन बहुत स्ट्रांगली एक बहुत स्ट्रांग बिजनेसमैन हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज ऑलवेज अ जेस्टेशन पीरियड। तो एक तो ये जो हम या आप जो भी करा रहे हैं, ये सबसे पहले तो हम ही लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ही सबसे पहले डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। अरे वर्कशॉप खत्म हो गई, कोई रिजल्ट दिखा नहीं। रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। यू वोंट बिलीव, मैंने ये प्रोग्राम 2022 से शुरू करा था और 2022 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं 3 बार कर चुकी हूँ, अभी 4थी बार मैं अगस्त में करूंगी। लेकिन जो 2022 के पार्टिसिपेंट थे, उनके रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस स्टार्ट होने की खबर अब आती है हमारे पास। मे बी समटाइम, क्योंकि लोकल लेवल पे लोग होते हैं, दे आर इनवाइटिंग मी फॉर इनॉग्रल सेशन, या वो कहते हैं कि रिबन काटने मैडम आप आ जाइए। तो कभी कभी 1-1 साल लगता है, बिकॉज वो प्रोग्राम में उन्होंने स्क्रैच से चीजें सीखी। कई लेडीज होती हैं घर में बुटीक चला रही हैं, ठीक है, या जो भी यहाँ अलीगढ़ में जैसे हैंडवर्क या पत्ती वर्क बहुत फेमस है, जो घर घर होता है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो कैसे फौरन नहीं कर पाती, पढ़ी लिखी कम होती हैं। हम उनका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, हम उनको, अब पता चला 6 महीने से 8 महीने तो उनको बैंक से ही कागज अपने समेट के देने में और लोन लेने में लग गया। कभी कभी बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। देन देखा मैंने आज की कहीं और से फंडिंग करा दीजिए मैडम।
तो जो भी फंड है वो फंडर है, वो रिस्क फंडर है, वो उन पे पहले कैसे भरोसा करे, उस पे फिर होमवर्क होता है। तो 1 साल 1.5 साल ऐसे ही निकल जाता है। तो पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि जो भी वर्कशॉप प्रोग्राम हम लोग कराएंगे उसके इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे. It will take time. Another thing is that at least we are making a difference by giving them an exposure. कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ की तो स्टार्ट इन प्रोग्राम्स में मैंने अभी तक के 180 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी मतलब ट्रेन हो चुके हैं इसमें, जिसमें कि कम से कम 30-35 लोगों का कारोबार मैंने शुरू करा दिया है. They have either they have boutiques or they have beauty products to be sold. One or two have opened their retail shop in the city. तो वो थोड़ा सा लेकिन वहां तक आते थे 6-8 महीने थोड़ा सा लगते. तो ये चीज और लोग जो होते स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होता, अरे वर्कशॉप हो रही है कोई रिजल्ट तो ठीक से दिख नहीं रहा है. अरे नहीं भाई, इट हैज अ जेस्टेशन पीरियड, इट विल टेक टाइम. एटलीस्ट गिव देम टाइम, क्योंकि वो कोई भी नॉलेज को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने में समय लगता है थोड़ा सा. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. और वो पार्टिसिपेंट्स को भी मैं काउंसलिंग करती हूँ कि नो, इट इज अ मैराथन. आप हो सकता है अभी 4 बार फेल हो, 4 साल लग जाए, तो फिर से उठ के खड़ा होना पड़ेगा, फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. those motivating things have to be shared with them. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Okay, my pleasure. I hope we are in this, Participants, being from academics background. Yes, please. Yes, आफ्ताब साहब, आप कुछ कह रहे थे? participants और पूछ लें. So anybody, most welcome. Any other I query? think, ma'am, there is no more questions. Okay. Hello, ma'am. I think one